Namaskar. Hello and welcome to Classic Tutorial. Dear viewer, I am back with your reaction and demand as I saw in the comment section of our YouTube channel. In this video lecture, I will explain William Wordsworth and his beautiful poem Daffodils. And I will also explain in this video something related to or some basic element related to poem. So without wasting of time, let's get started. Let us first focus on the poet. Dear viewers, look, Daffodils were written by William Wordsworth. So William Wordsworth was born in 1770 and died in 1850. He lived around 80 years. He is an English romantic poet. He is variously called such as poet of the nature, poet of the man, and so on and so forth. He defines poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. Dear viewer, just remember this line. I shall make you associate this line with some question answer part when I shall be discussing with you or solving with you that question answer part. Just remember this. I shall make you understand later on. Now let me tell you something about the background of the poem. Dear viewers or students, what you are reading, the poem Daffodil in your book, it was originally titled as I wander lonely as a cloud, the first line of the poem. Later it was renamed and put as Daffodil. Okay, so this poem was inspired by an incident or event of William Wordsworth when he was returning with his sister Dorothy Wordsworth across a belt of daffodil near that Ulmar Lake, which is situated in the Lake District of London. The poem was written sometime between 1804 and 7, but originally or the final version of the poem was published in 1815. This poem is a lyric poem. So let me tell you what is that lyric. Okay, lyric poem is a type of poem. It is a formal type of poem. Expresses someone's feeling. Typically, it is often spoken as first person point of view or the poet himself. But lyric means something different also. It means the poem which followed by music, that is also lyric poem. This Daffodil is a 4-stanzaic poem. Now let me introduce you something related to poetry or some basic elements related to poetry. So what are the basic elements? One element is that stanza. Dear viewers, generally a prose or a novel or an essay consists of different paragraphs, whereas a poem consists of different stanza. Okay, so if we are reading poetry, then we should say stanza instead of saying it as a paragraph. Sometimes examiners ask you, what does the stanza mean? What does the poet wants to tell in this stanza? Such kind of question asked in the exam. Then another thing is that line. Number 2, line. Okay. So in a poetry we find some line. That means each stanza consists of some line, and we will find in Daffodils also. And the examiners ask you, what does line 1 imply? Or for example, 10,000 I saw you at a glance. What does the line mean? In such kind of question is asked in your examination. Okay, so we have to go line by line and stanza wise when we are reading poetry or a poem. Now let me tell you what is a rhyme or a rhyme scheme or a rhyme pattern. If the sound of the last word
of a sentence or line matches with another sound of the last word of a line, then we say they follow certain rhyme. For example, if I say words like cloud, hills, crowd, daffodils, ओके आमे देखिबा कि एठी जो लास्ट वर्ड गोटे लाइन रो आउ गोटे लाइन रो लास्ट वर्ड सहित जदि मैच होची तार ध्वनि जदि किछि सामंजस्य रहिछि बा मैच होची ताहले आमे सेटा को राइम कहबा। फॉर एग्जांपल देखो एटा क्लाउड डोरे सरीला, एठी हम देखिबा क्राउड इटा भी डोरे सरीला, तो ए दुईटा लाइन राइम होउछि। ओके सिमिलरली आम जो देखा हिल्स इटा स होची, इटी डैफोडिल्स इटा मध्य स होची, तो ये दुईटा लाइन राइम्स होची। इटा पोएट्री बा पोएम रे देखा जाता है। इफ वी कम अक्रॉस सम सॉन्ग्स स्पेशली योर बॉलीवुड सॉन्ग और हॉलीवुड सॉन्ग, वी कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ राइम पैटर्न। जदि मु कहिबी कि तुम मैंने शुणी थी देखाओ पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तो ये कौन कौन हो र रे सरुची, र रे सरुची, तो ये दुईटा हूँ राइम फॉर्म करुँच। तो आम प्राय तो पोएट्री देखा जाए था, सब पोएट्री किसी प्राय पोएट्री या राइमिंग स्कीम थाए। ओके तापर देखा पिले आम फिगर ऑफ स्पीच देखा टिके किसी फिगर ऑफ स्पीच अच्छी आउ अलंकार जो कहूँ आम फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इन ओडिया इट इज कॉल्ड अलंकार। पोएट यूजेस ट्रेमेंडियसली दिस थिंग कि हम जदि अलंकार कहूँ गोटे अलंकार हूँ सिमिली, बोले तुम ओडिया ऑप्शनल पढ़ुव, तो व्हाट इज दैट सिमिली? इट इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग सम सिमिलारिटी, कि जदि कौन से दुईटी ऑब्जेक्ट को आमे किछि तार सिमिलारिटी काढ़ा तार किछि सामंजस्य काढ़ा, ताहले सेटा ऑफन यूजिंग एज एंड लाइक, एज एंड लाइक, एज और लाइक व्यवहार करिकी आमे जदि कौन से दुईटी डिफरेंट ऑब्जेक्ट दुईटी भिन्न ऑब्जेक्ट रो किछि सिमिलारिटी बा सिमिलारनेस आमे जदि काढुछु ताहले आमे कोन यूज करछु आमे करूछु सेठी सिमिली। फॉर एग्जांपल मु जदि कहिबी हमर वर्ड्सवर्थ ही हिमसेल्फ यूजेस इन दिस in his poem Daffodils that I wander on lonely as a cloud, से निजको गोटे क्लाउड सहित तुलना करिसंती यूजिंग एज को यूज करिके व्यवहार करिके, तो यहाँ कह जाउछि आम कौन सिमिली। ये सिमिली भी बहुत व्यवहार होता है तुम गीत रे भी होता है। जदि मु आउ किछि एग्जांपल देबी तो मुझे कहि परिबी देख ही इज एज ब्रेव एज द लायन। ओके मुझे कहबी ही इज एज ब्रेव एज द लायन। देख पिले ये लायन गोटे अलग क्रिएचर बा बीइंग, ये ही गोटे माने ये मनीष, एटा गोटे मनीष, एटा गोटे पशु। मनीष और पशु होइथिबा सत्वे भी ये दी जनक मध्य किछिटा सामंजस्य रहुछि। तो सामंजस्य कौन कि ये जो लायन माने कौन, लायन इज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, तार ब्रेवरी पाई से परिचित बा फेमस। आ से ब्रेवरीटा बा ब्रेवनेसटा कोठी गोटे लोक पाखरे देखा जाउछि। तेणु करी आम यार जो ब्रेवरी बा जो ब्रेवनेसटा को आम क्या सहित तुलना करूँ, लायन सहित तुलना करूँ। तो यही प्रकार तुलना जो एज व्यवहार होइकी जदि रही व्यवहार करा जाइथिबो ताकू आम कहबा सिमिलिबल कहबा। आउ बहुत अच्छे अनेक अच्छे जदि मु कहबी हर फेस लुक्स लाइक द मून,
हार माने गोटे झील बा लेडी जे भी अच्छी ताको चेहरा एते सुंदर पड़े जे आम गोटे चंद्रमा सहित तुलना करूँ. सो डियर व्यूअर्स, नाउ let us consider the poem that first stanza I have written on the whiteboard. First of all, we will see the rhyming pattern or rhyme pattern. Here look, I wander lonely as a cloud. किएटी डरे सरुची. तापर देखो, that floats on high over vales and hills. लरे सरुची, hills और स hills सरे सरुची. तापर देखो आउ गोटे अच्छी, when all at once I saw a crowd. आउ डरे सरुची. पुणी a host of golden daffodils. अगेन इटा सरे सरुची स ध्वनि रे. तो देखो आम राइम को देखा आम क्लाउड ड इटा ए है. लेट अस टेक एच ए. तापर देखो ये जो हिल्स ये फर्स्ट लाइन ड संगे स मैच हो ना, तेणुक ये कहवा बी. तार पुणी देखा लाइन नंबर थ्री क्राउड ये ड फर्स्ट लाइन संगे मैच हो तार जो ध्वनिटा साउंडटा, तेणुक आम कहवा ए बोलिकी ये जो फर्स्ट लाइन सांगे. तापर पुणी देख नंबर फोर्थ लाइन एक होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स ये जो स ध्वनिटा ये 2 नंबर स ध्वनि सांगे मैच हो, तेणुक आम कहवा बी. पुणी देखा लाइन नंबर 5 बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज जियोरे सरला. तापर फ्लोटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज पुणी जियोरे सरला. तमें ये दुईटा ऊपर क्या संगे भी राइम है ना, यहाँ क्या संग ऊपर संग राइम है ना. तापर आम सी लिखिलु. एगेन दिस इज ऑल्सो यहाँ भी क्या संगे राइम है ना, खाली 5 नंबर लाइन संग राइम हो, तो यहाँ भी आम लिखिलु सी. तो आम राइमिंग जो राइम स्कीम जो अच्छी ये जो पोएम रो यहाँ हूँ ए बी सी सी. ओके, यहाँ हूँ राइम स्कीम. एंड थ्रू आउट द पोएम इन एवरी स्टांजा वी सी सच ए बी सी सी राइम स्कीम. ओके, तो देखो आउ एक्सप्लेन करने पूर्वर लेट मी से कि wherever I is used, that is the voice of the poet. Voice of the poet mean voice of that Wordsworth himself. से निजे कहते, तेणुक यही जो पोएमटा यहाँ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से कहुई. तो देखो कहते देखो फर्स्ट लाइन रे आई वंडर एंड लोनली एज ए क्लाउड. आई रेफर्स टू हुम? आई रेफर्स टू दैट वर्ड्सवर्थ द पोएट हिमसेल्फ. एंड से कहन हिज स्टेट ऑफ माइंड इज कंपेयर विथ दैट ऑफ ए क्लाउड. कि गोटे देखो गोटे क्लाउड को देखो लोनली क्लाउड, से एकुटिया जो भूली बुलुथो इे सियाड़े भासुथो से क्लाउड सांगरे से वर्ड्सवर्थ जो स्टेट ऑफ माइंड तांकर जो मन जमीती जाजाबर हिसाब से फटकी बोलची. यहाँ माने देखो पिले ये जो वांडरर माने मूविंग हियर एंड देयर एमलेसली बिना किसी एम इे सियाड़े बुली बुलवाटा को आम जाजाबर बोल कहवा, वांडरर बोल कहवा. दैट मीन्स द माइंड ऑफ द पोएट इज वांडरिंग लाइक ए लोनली क्लाउड. जमी गोटे क्लाउड गोटे इे सियाड़े बुली बुलू थाए बिना उद्देश्य से प्रकार से पोएट्र माइंडटा इे सियाड़े बुली बुलूची. आउ ये देखिपार तुम एज लगे कि जो तुलना करा जाइए, तेणुक ये आम सिमिली बोल कहूँ. ये प्रकार तुलना को सिमिली मुझे फास्ट स्टार्टिंग रे सिमिली कौन. तापर देखो 2 नंबर लाइन कहते दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर भेल्स एंड हिल. दैट रेफर्स टू व्हाट? दैट माने कौन? दिस क्लाउड, दैट क्लाउड फ्लोट्स ऑन हाई ओवर भेल्स एंड हिल्स. भेल्स माने वैली, वैली उपत्यका. इट इज इन पोएटिक एंड इट इज इन प्रोजाइक. पोएटिक रे हम भेल्स बोल कहूँ, प्रोजाइक रे वैली बोल कहूँ. आम जमी पतरे आ पत्रे बोल कहूँ, गद्य यार पत्र से प्रकार यहाँ यूज हो. तो से जो क्लाउडटा कौन करुच्ची कि हाई ओवर भेल्स एंड हिल्स ये जो
उपत्यका और हिल्स छोट छोट पहाड़ ऊपर जो भासी बुलूंट पानी रे जमी डंगा भासी बुले भासे सही प्रकार ये जो कुहुड़ीटा से उपत्यका से भैली आउ हिल्स रे भासी बुलूले एमलेसली सस्पेंडेड होइक देन देखो व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स तापर कौन एट दैट सिचुएशन और एट दैट टाइम एट दैट जो कविर जो माइंडटा जो वांडर होता सेमिति ऑल ऑफ ए सडनली ऑल ऑफ ए सडन हठात कौन है ऑल एट वंस मान हठात आई सॉ ए क्राउड आई रेफर्स टू हुम दैट वर्ड्सवर्थ से कवि निजे सो ए क्राउड गोटे भीड़ को देखिले क्राउड माने कोन भीड़ आउ देख पिले एटी पर्सनिफाई करिसंती आम कविता पर्सनिफाई कर पर्सनिफिकेशन माने कोन गिविंग ह्यूमन क्वालिटी टू एन इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट और एनिमल किछि निर्जीव बा सजीव वस्तु को जीवित वस्तु बा किछि एनिमल मानंकु कि पशु पक्षी एनिमल हो कि ट्री भी हो से मानंकु आमे ह्यूमन क्वालिटी देबा मनुष्यर गुण देबा मनुष्य जेपरि मनुष्यर जो से कांदे जो हसे खुशी अनुभव करे यही प्रकार क्वालिटी जो तांकु देबा ताहले सेटा हम पर्सनिफाई करबा आ भिड गोट कार थाए मनुष्य मानकर भिड़ थाए तेणुकर एटा जो क्राउड बोल कहिले एटा मनुष्य मानकर भिड़ हिसाब से डैफोडिल को कह जाउछि तार पर द पोएट पर्सनिफाई हियर कोन कहउछन देखो व्हेल ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड हठात मु गोटे कोन गोटे क्राउड ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल क्राउड हे कर गोटे बहुत एरिया रे प्रसार हे करी गोटे ग्रुप ऑफ डैफोडिल्स को मु देखिली तार माने डैफोडिल्स फ्लावर को मु देखिली बोल कहले सिचुएशन बुझेला कौ समय जो बुली बुलू थिले जा बरपरा बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज कौटी देखिले द पोएट सॉ द डैफोडिल्स और दैट होस्ट ऑफ डैफोडिल्स व्हेयर बिसाइड द लेक बिसाइड माने जो ह्रदर कढ़रे एंड बीनीथ द ट्रीज बीनीथ माने अंडर बीनीथ आ अंडर माने सेम गछ मानक तलरे सेठी गोटे लेक अच्छी ह्रद अच्छी ह्रदर साइड रे कौन अच्छी ह्रदर साइड रे गछ माने अच्छी से गछ मानक तले डैफोडिल्स गोटे गार्डन पड़ा होगी अच्छे से दृश्य को आम कविता देखी देन वन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज फ्लटरिंग हु वर फ्लटरिंग द डैफोडिल्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज लेट मी से व्हाट इज ब्रिज ब्रिज कौन ब्रिज माने स्लो मूविंग एयर फाउंड इन सीशोर ओके ये जो स्लो मूविंग एयर जो सुलुसुलिया पवन कौटी मिले आम जो समुद्र कूल कि ह्रदर कूल से एयर को आम कौन कहू ब्रिज बोल कहू आ जो ब्रिज रे ये जो स्लो मूविंग वे कौन होते से माने डांसिंग एंड फ्लटरिंग करते फ्लटरिंग माने काना तांकर जो बॉडी पार्ट टाक जो प्लांट से डैफोडिल जो प्लांटा से कौन होता टू एंड फ्रो मूवमेंट होता इे सियाड़े कि टू एंड लेफ्ट और राइट मूवमेंट होता से आम कहवा कौन फ्लटरिंग कहवा द डैफोडिल वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग एंड इट एपियर्स टू बी डांस व्हेन द फ्लावर flutter in that bridge and that situation or that picture seems to be dance for that writer or for that poet Wordsworth. Okay.